اور میرا دل کہتا ہے موتیا کہ یہ محبت نہیں سزا ہے۔ تم دونوں منسٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہو نا؟ مجھے اغوا کرنا چاہ رہے تھے ہے نا؟ تم دونوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ابے یہ لڑکی مروائے گی بھائی، چل یہاں سے۔ دیکھا دیکھا سچ سامنے آ گیا نا، اس لیے بھاگ رہے ہو نا تم دونوں۔ ابھی کرتے ہیں پولیس کو کال۔ صبر کرو، وہیں پہ رکھو، ابھی کرتے ہیں پولیس کو کال۔ کمرے سے کیسے باہر آ گئی؟ کمرے کا دروازہ تو بند تھا۔ بند تھا؟ صاحب ہمیں تو نہیں پتا، ہم خود اس کی آواز سن کر آئے ہیں یہاں پر۔ یہ مجھے اغوا کرنے آئے تھے۔ صاحب یہ ابھی بھی نشے میں پتہ نہیں۔ میں نے کہا بس نہیں ہوگا بس میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ، لیکن جو نہیں ہے وہ سب سے قیمتی ہے۔ میں لایا ہوں تمہیں اپنے کمرے میں، پی لی تھی رات کو تم نے، اور نشا؟ جی میں تمہیں محبت کے بدلے محبت نہیں دے سکتا۔ میرا سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ میں کیسے بھول گئی کہ اور اب تو وہ منسٹر بھی بن گیا ہے، اور ہماری بیٹی بہت جلد منسٹر رانی بن جائے گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بہن اس کی شادی کہیں اور کر دے، اس لیے ہمیں فوراً جا کے نا مر کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ بادشاہ آج کل ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا ہوا۔ مطلب یہ کہ اس کو ایک لڑکی دکھ گئی ہے اور اب وہ ہر وقت اس کے خیالوں میں گم رہتا ہے۔ مزے کی بات یہ قربان علی میرا بیٹا شوقین ہے، کبھی اسے جانور پالنے کا شوق چڑھ جاتا ہے تو کبھی پرندے، کبھی۔ لیکن بھائی صاحب بخار تو تبھی اترے گا نا اگر اس کا علاج کیا جائے گا تو پھر ابھی سے مٹھائی منگواؤ صاحب جان، تمہارے بیٹے کی منگنی ہو گئی ہے۔ آج سے ملک ہماری بہو ہے۔ نجو بھیجو کسی کو جلدی سے، جا کے دکان سے مٹھائی لائے، جتنی بڑی ہے سب اٹھا لائے۔ میں یہاں رہوں گی۔ پلیز چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے یار۔ بچل تو ڈرا مت، تو نے مجھے بتایا تھا نا، مرد بن مرد، دیکھا جائے گا، نیک کام میں اللہ مدد کرے گا۔ لاتے جا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہم فرشتے ہیں تمہارے لیے۔ میں مر گئی۔ ارے جو لڑکا تمہیں لے کر آیا ہے نا، وہ کسی بھی وقت آ رہا ہوگا، یا اس کے دوست آ جائیں، تم اٹھ جاؤ جلدی سے۔ مجھے لگا کہ مجھے شادی کے لیے لے کے آیا اور مجھے کمرے میں رکھ لیا۔ ارے آستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ کیوں آہستہ بولوں؟ سب نے ڈانس کیا تھا، میں نے ڈانس کر لیا تو کیا برا کیا؟ بابا بھی جانداد سرکار کے ہاتھ میں موجود وہ پرانی دستاویز صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھی، بلکہ وہ غلام کی محبت اور سندری کی زندگی کے درمیان کھنچی ہوئی ایک خونی لکیر تھی۔ حویلی کی فضا میں آج ایک عجیب سی گھٹن ہے، جیسے دیواریں کوئی ایسا راز اگلنے والی ہوں جو برسوں سے ان کے سینے میں دفن تھا۔ قسط نمبر 15 کا آغاز ایک ایسے دھماکے سے ہوگا جو ناظرین کے ہوش اڑا دے گا۔ غلام جو اب تک اپنی زندگی کو ایک بے مقصد سفر سمجھ رہا تھا، خود کو ایک ایسی کشمکش میں پاتا ہے جہاں اس کا دل پہلی بار اس کی عقل پر حاوی ہو رہا ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں تنہا بیٹھا اپنی سوچوں سے لڑ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا ہے، یہ لڑکی سندری میرے خیالوں میں کیوں آ رہی ہے؟ یہ سکون، یہ معصومیت، شاید یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے بدل دیا ہے۔ کیا یہ محبت ہے یا عشق میں فنا ہو جانا؟ یہ وہی لمحہ ہے جہاں غلام کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو اب تک سب سے چھپا ہوا تھا۔ وہ جو لوگوں کو خوف زدہ کرنا جانتا تھا، آج خود اپنی ہی محبت سے ڈر رہا ہے۔
दूसरी तरफ जानदाद सरकार की बेचैनी अपनी इंतहा को छू रही है। उसे अपनी नस्ल की फिक्र खाए जा रही है। उसके पास पहुंचने वाली एक खुफिया इत्तला उसे उस कोठे की तरफ ले जाती है जहां बरसों पहले एक गुनाह हुआ था, या शायद एक बहुत बड़ी ज्यादती। जानदाद को शक है कि सुंदरी महज एक रक्कासा नहीं, बल्कि उसके अपने खून का वो हिस्सा है जिसे वो मुर्दा समझकर भूल चुका था। वो अपने वफादारों को हुक्म देता है कि उस लड़की के माजी का एक एक पन्ना छान मारा जाए, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी ये तलाश उसे एक ऐसी सच्चाई के सामने ला खड़ा करेगी जो खुद उसके अपने इख्तिदार को जलाकर राख कर देगी। आशिक अली, जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोहरा है, अपनी साजिशों का जाल बुन रहा है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर सुंदरी और जानदाद का रिश्ता साबित हो गया तो इसकी बरसों की मेहनत जाया हो जाएगी। वो साहिब जान के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाता है जिसमें सुंदरी को बदनाम करके हवेली से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। वो कहता है, तुमने लोगों को सलाखों के पीछे कैद होते देखा है, लेकिन लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो। इसका इशारा गुलाम की तरफ है जो सुंदरी की मोहब्बत में कैद हो चुका है। आशिक अली का अगला वार सुंदरी की पाक दामनी पर होगा। वो झूठे गवाह और जाली कागजात तैयार करवाता है ताकि जानदाद की नजर में सुंदरी की अहमियत खत्म हो जाए। सुंदरी, जो इन तमाम साजिशों से बेखबर है, अपनी ही दुनिया में मग्न है। उसकी आंखों की वो मासूमियत ही गुलाम के लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। एक जज्बाती मंजर में जब गुलाम उसे खबरदार करने की कोशिश करता है तो सुंदरी की खामोशी उसे मजीद तड़पा देती है। गुलाम उसे कहता है कि इसे ये शहर, ये हवेली छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन सुंदरी का जवाब उसे लाजवाब कर देता है। वो कहती है कि जो कैदी अपनी जंजीरों से मोहब्बत कर ले, उसे आजादी की ख्वाहिश नहीं रहती। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब अस्पताल से एक पुरानी रिपोर्ट बरामद होती है। ये रिपोर्ट उस रात की है जब जानदाद की बेटी की पैदाइश हुई थी। इस दस्तावेज में दर्ज निशानात और सुंदरी के हाथ पर मौजूद पैदाइशी निशान का मिलना इस बात की तस्दीक कर देता है कि सुंदरी ही वो नस्ल है जिसे जानदाद ढूंढ रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जानदाद एक ऐसी लड़की को अपनी बेटी तस्लीम करेगा जिसने कोठे पर परवरिश पाई, या वो अपनी अना की खातिर इस सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर देगा। किस्त के इख्तिताम पर गुलाम और जानदाद का आमना सामना होता है। जानदाद उसे हुक्म देता है कि उस लड़की को ठिकाने लगा दिया जाए, क्योंकि वो अब उसकी इज्जत के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन गुलाम, जो अब बदल चुका है, पहली बार अपने आका की आंखों में आंखें डालकर इनकार कर देता है। वो कहता है कि सुंदरी को हाथ लगाने से पहले उसे उसकी लाश से गुजरना होगा। ये वो लम्हा है जहां वफादारी और मोहब्बत के दरमियान एक ऐसी जंग शुरू होती है जिसका अंजाम सिर्फ तबाही है। आशिक अली इस मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस को हवेली बुलाता है, ये दावा करके कि गुलाम ने सुंदरी को अगवा कर रखा है। हवेली के सहन में पुलिस जानदाद के मुसल्ला आदमी और एक तरफ तन्हा खड़ा गुलाम,
ये मंजर नाजरीन के दिलों की धड़कनें रोक देगा। क्या गुलाम सुंदरी को बचा पाएगा? क्या सुंदरी को पता चलेगा कि जिस शख्स को वो अपना दुश्मन समझती थी वही उसका असल बाप है? और क्या ये मोहब्बत इस खूनी खेल में जीत पाएगी या सब कुछ राख हो जाएगा? किस्त 15 का ये सफर जज्बाती उतार चढ़ाव से भरपूर है, जहां हर मुकालमा एक नया सवाल छोड़ेगा। नाज़रीन को ये देखकर धचका लगेगा कि कैसे एक मासूम लड़की की जिंदगी ताकतवर लोगों की अना की भेंट चढ़ने वाली है। ये किस्त साबित करेगी कि खूनी रिश्ते सिर्फ जिस्म में नहीं होते, बल्कि वो एहसासात में जिंदा रहते हैं। जानदाद सरकार के हाथ में मौजूद वो पुरानी दस्तावेज सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि वो गुलाम की मोहब्बत और सुंदरी की जिंदगी के दरमियान खिंची हुई एक खूनी लकीर थी। हवेली की फिजा में आज एक अजीब सी घुटन है, जैसे दीवारें कोई ऐसा राज उगलने वाली हों जो बरसों से उनके सीने में दफन था। किस्त नंबर 15 का आगाज एक ऐसे धमाके से होगा जो नाजरीन के होश उड़ा देगा। गुलाम जो अब तक अपनी जिंदगी को एक बेमकसद सफर समझ रहा था, खुद को एक ऐसी कश्मकश में पाता है जहां उसका दिल पहली बार उसकी अक्ल पर हावी हो रहा है। वो रात की तारीकी में तन्हा बैठा अपनी सोचों से लड़ रहा है। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है। क्या ये मोहब्बत है या इश्क में फना हो जाना? ये वही लम्हा है जहां गुलाम की शख्सियत का वो पहलू सामने आता है जो अब तक सबसे छुपा हुआ था। वो जो लोगों को खौफजदा करना जानता था, आज खुद अपनी ही मोहब्बत से डर रहा है। दूसरी तरफ जानदाद सरकार की बेचैनी अपनी इंतहा को छू रही है। उसे अपनी नस्ल की फिक्र खाए जा रही है। उसके पास पहुंचने वाली एक खुफिया इत्तला उसे उस कोठे की तरफ ले जाती है जहां बरसों पहले एक गुनाह हुआ था, या शायद एक बहुत बड़ी ज्यादती। जानदाद को शक है कि सुंदरी महज एक रक्कासा नहीं, बल्कि उसके अपने खून का वो हिस्सा है जिसे वो मुर्दा समझकर भूल चुका था। वो अपने वफादारों को हुक्म देता है कि उस लड़की के माजी का एक एक पन्ना छान मारा जाए, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी ये तलाश उसे एक ऐसी सच्चाई के सामने ला खड़ा करेगी जो खुद उसके अपने इख्तिदार को जलाकर राख कर देगी। आशिक अली, जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोहरा है, अपनी साजिशों का जाल बुन रहा है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर सुंदरी और जानदाद का रिश्ता साबित हो गया तो इसकी बरसों की मेहनत जाया हो जाएगी। वो साहिब जान के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाता है जिसमें सुंदरी को बदनाम करके हवेली से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। वो कहता है, तुमने लोगों को सलाखों के पीछे कैद होते देखा है, लेकिन लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो? इसका इशारा गुलाम की तरफ है जो सुंदरी की मोहब्बत में कैद हो चुका है। आशिक अली का अगला वार सुंदरी की पाक दामनी पर होगा। वो झूठे गवाह और जाली कागजात तैयार करवाता है ताकि जानदाद की नजर में सुंदरी की अहमियत खत्म हो जाए।
सुंदरी जो इन तमाम साजिशों से बेखबर है, अपनी ही दुनिया में मग्न है। उसकी आंखों की वो मासूमियत ही गुलाम के लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। एक जज्बाती मंजर में जब गुलाम उसे खबरदार करने की कोशिश करता है तो सुंदरी की खामोशी उसे मजीद तड़पा देती है। गुलाम उसे कहता है कि इसे ये शहर, ये हवेली छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन सुंदरी का जवाब उसे लाजवाब कर देता है। वो कहती है कि जो कैदी अपनी जंजीरों से मोहब्बत कर ले, उसे आजादी की ख्वाहिश नहीं रहती। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब अस्पताल से एक पुरानी रिपोर्ट बरामद होती है। ये रिपोर्ट उस रात की है जब जानदाद की बेटी की पैदाइश हुई थी। इस दस्तावेज में दर्ज निशानात और सुंदरी के हाथ पर मौजूद पैदाइशी निशान का मिलना इस बात की तस्दीक कर देता है कि सुंदरी ही वो नस्ल है जिसे जानदाद ढूंढ रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जानदाद एक ऐसी लड़की को अपनी बेटी तस्लीम करेगा जिसने कोठे पर परवरिश पाई, या वो अपनी अना की खातिर इस सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर देगा। किस्त के इख्तिताम पर गुलाम और जानदाद का आमना सामना होता है। जानदाद उसे हुक्म देता है कि उस लड़की को ठिकाने लगा दिया जाए, क्योंकि वो अब उसकी इज्जत के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन गुलाम, जो अब बदल चुका है, पहली बार अपने आका की आंखों में आंखें डालकर इनकार कर देता है। वो कहता है कि सुंदरी को हाथ लगाने से पहले उसे उसकी लाश से गुजरना होगा। ये वो लम्हा है जहां वफादारी और मोहब्बत के दरमियान एक ऐसी जंग शुरू होती है जिसका अंजाम सिर्फ तबाही है। आशिक अली इस मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस को हवेली बुलाता है, ये दावा करके कि गुलाम ने सुंदरी को अगवा कर रखा है। हवेली के सहन में पुलिस, जानदाद के मुसल्ला आदमी और एक तरफ तन्हा खड़ा गुलाम, ये मंजर नाजरीन के दिलों की धड़कनें रोक देगा। क्या गुलाम सुंदरी को बचा पाएगा? क्या सुंदरी को पता चलेगा कि जिस शख्स को वो अपना दुश्मन समझती थी वही उसका असल बाप है? और क्या ये मोहब्बत इस खूनी खेल में जीत पाएगी या सब कुछ राख हो जाएगा? किस्त 15 का ये सफर जज्बाती उतार चढ़ाव से भरपूर है, जहां हर मुकालमा एक नया सवाल छोड़ेगा। नाज़रीन को ये देखकर धचका लगेगा कि कैसे एक मासूम लड़की की जिंदगी ताकतवर लोगों की अना की भेंट चढ़ने वाली है। ये किस्त साबित करेगी कि खूनी रिश्ते सिर्फ जिस्म में नहीं होते, बल्कि वो एहसासात में जिंदा रहते हैं। जानदाद सरकार के हाथ में मौजूद वो पुरानी दस्तावेज सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि वो गुलाम की मोहब्बत और सुंदरी की जिंदगी के दरमियान खिंची हुई एक खूनी लकीर थी। हवेली की फिजा में आज एक अजीब सी घुटन है, जैसे दीवारें कोई ऐसा राज उगलने वाली हों जो बरसों से उनके सीने में दफन था। किस्त नंबर 15 का आगाज एक ऐसे धमाके से होगा जो नाजरीन के होश उड़ा देगा। गुलाम, जो अब तक अपनी जिंदगी को एक बेमकसद सफर समझ रहा था, खुद को एक ऐसी कशमकश में पाता है जहां उसका दिल पहली बार उसकी अक्ल पर हावी हो रहा है। वो रात की तारीकी में तन्हा बैठा अपनी सोचों से लड़ रहा है। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है,
ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है। क्या ये मोहब्बत है या इश्क में फना हो जाना? ये वही लम्हा है जहां गुलाम की शख्सियत का वो पहलू सामने आता है जो अब तक सबसे छुपा हुआ था। वो जो लोगों को खौफजदा करना जानता था, आज खुद अपनी ही मोहब्बत से डर रहा है। दूसरी तरफ जानदाद सरकार की बेचैनी अपनी इंतहा को छू रही है। उसे अपनी नस्ल की फिक्र खाए जा रही है। उसके पास पहुंचने वाली एक खुफिया इत्तला उसे उस कोठे की तरफ ले जाती है जहां बरसों पहले एक गुनाह हुआ था, या शायद एक बहुत बड़ी ज्यादती। जानदाद को शक है कि सुंदरी महज एक रक्कासा नहीं, बल्कि उसके अपने खून का वो हिस्सा है जिसे वो मुर्दा समझकर भूल चुका था। वो अपने वफादारों को हुक्म देता है कि उस लड़की के माजी का एक एक पन्ना छान मारा जाए, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी ये तलाश उसे एक ऐसी सच्चाई के सामने ला खड़ा करेगी जो खुद उसके अपने इख्तिदार को जलाकर राख कर देगी। आशिक अली, जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोहरा है, अपनी साजिशों का जाल बुन रहा है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर सुंदरी और जानदाद का रिश्ता साबित हो गया तो इसकी बरसों की मेहनत जाया हो जाएगी। वो साहिब जान के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाता है जिसमें सुंदरी को बदनाम करके हवेली से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। वो कहता है, तुमने लोगों को सलाखों के पीछे कैद होते देखा है, लेकिन लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो? इसका इशारा गुलाम की तरफ है जो सुंदरी की मोहब्बत में कैद हो चुका है। आशिक अली का अगला वार सुंदरी की पाक दामनी पर होगा। वो झूठे गवाह और जाली कागजात तैयार करवाता है ताकि जानदाद की नजर में सुंदरी की अहमियत खत्म हो जाए। सुंदरी, जो इन तमाम साजिशों से बेखबर है, अपनी ही दुनिया में मग्न है। उसकी आंखों की वो मासूमियत ही गुलाम के लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। एक जज्बाती मंजर में जब गुलाम उसे खबरदार करने की कोशिश करता है तो सुंदरी की खामोशी उसे मजीद तड़पा देती है। गुलाम उसे कहता है कि इसे ये शहर, ये हवेली छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन सुंदरी का जवाब उसे लाजवाब कर देता है। वो कहती है कि जो कैदी अपनी जंजीरों से मोहब्बत कर ले, उसे आजादी की ख्वाहिश नहीं रहती। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब अस्पताल से एक पुरानी रिपोर्ट बरामद होती है। ये रिपोर्ट उस रात की है जब जानदाद की बेटी की पैदाइश हुई थी। इस दस्तावेज में दर्ज निशानात और सुंदरी के हाथ पर मौजूद पैदाइशी निशान का मिलना इस बात की तस्दीक कर देता है कि सुंदरी ही वो नस्ल है जिसे जानदाद ढूंढ रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जानदाद एक ऐसी लड़की को अपनी बेटी तस्लीम करेगा जिसने कोठे पर परवरिश पाई, या वो अपनी अना की खातिर इस सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर देगा। किस्त के इख्तिताम पर गुलाम और जानदाद का आमना सामना होता है। जानदाद उसे हुक्म देता है कि उस लड़की को ठिकाने लगा दिया जाए, क्योंकि वो अब उसकी इज्जत के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन गुलाम, जो अब बदल चुका है, पहली बार अपने आका की आंखों में आंखें डालकर इनकार कर देता है। वो कहता है कि सुंदरी को हाथ लगाने से पहले उसे उसकी लाश से गुजरना होगा,
یہ وہ لمحہ ہے جہاں وفاداری اور محبت کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہوتی ہے جس کا انجام صرف تباہی ہے۔ عاشق علی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کو حویلی بلاتا ہے، یہ دعویٰ کر کے کہ غلام نے سندری کو اغوا کر رکھا ہے۔ حویلی کے صحن میں پولیس، جانداد کے مسلح آدمی اور ایک طرف تنہا کھڑا غلام، یہ منظر ناظرین کے دلوں کی دھڑکنیں روک دے گا۔ کیا غلام سندری کو بچا پائے گا؟ کیا سندری کو پتا چلے گا کہ جس شخص کو وہ اپنا دشمن سمجھتی تھی وہی اس کا اصل باپ ہے؟ اور کیا یہ محبت اس خونی کھیل میں جیت پائے گی یا سب کچھ راکھ ہو جائے گا؟ قسط 15 کا یہ سفر جذباتی اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہے، جہاں ہر مکالمہ ایک نیا سوال چھوڑے گا۔ ناظرین کو یہ دیکھ کر دھچکا لگے گا کہ کیسے ایک معصوم لڑکی کی زندگی طاقتور لوگوں کی انا کی بھینٹ چڑھنے والی ہے۔ یہ قسط ثابت کرے گی کہ خونی رشتے صرف جسم میں نہیں ہوتے بلکہ وہ احساسات میں زندہ رہتے ہیں۔ جانداد سرکار کے ہاتھ میں موجود وہ پرانی دستاویز صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھی، بلکہ وہ غلام کی محبت اور سندری کی زندگی کے درمیان کھنچی ہوئی ایک خونی لکیر تھی۔ حویلی کی فضا میں آج ایک عجیب سی گھٹن ہے، جیسے دیواریں کوئی ایسا راز اگلنے والی ہوں جو برسوں سے ان کے سینے میں دفن تھا۔ قسط نمبر 15 کا آغاز ایک ایسے دھماکے سے ہوگا جو ناظرین کے ہوش اڑا دے گا۔ غلام جو اب تک اپنی زندگی کو ایک بے مقصد سفر سمجھ رہا تھا، خود کو ایک ایسی کشمکش میں پاتا ہے جہاں اس کا دل پہلی بار اس کی عقل پر حاوی ہو رہا ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں تنہا بیٹھا اپنی سوچوں سے لڑ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا ہے، یہ لڑکی سندری میرے خیالوں میں کیوں آ رہی ہے؟ یہ سکون، یہ معصومیت، شاید یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے بدل دیا ہے۔ کیا یہ محبت ہے یا عشق میں فنا ہو جانا؟ یہ وہی لمحہ ہے جہاں غلام کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو اب تک سب سے چھپا ہوا تھا۔ وہ جو لوگوں کو خوف زدہ کرنا جانتا تھا، آج خود اپنی ہی محبت سے ڈر رہا ہے۔ دوسری طرف جانداد سرکار کی بے چینی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، اسے اپنی نسل کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اس کے پاس پہنچنے والی ایک خفیہ اطلاع اسے اس کوٹھے کی طرف لے جاتی ہے جہاں برسوں پہلے ایک گناہ ہوا تھا، یا شاید ایک بہت بڑی زیادتی۔ جانداد کو شک ہے کہ سندری محض ایک رقاصہ نہیں بلکہ اس کے اپنے خون کا وہ حصہ ہے جسے وہ مردہ سمجھ کر بھول چکا تھا۔ وہ اپنے وفاداروں کو حکم دیتا ہے کہ اس لڑکی کے ماضی کا ایک ایک پنا چھان مارا جائے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی یہ تلاش اسے ایک ایسی سچائی کے سامنے لا کھڑا کرے گی جو خود اس کے اپنے اقتدار کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ عاشق علی، جو اس کہانی کا سب سے بڑا مہرا ہے، اپنی سازشوں کا جال بن رہا ہے۔ اسے احساس ہو چکا ہے کہ اگر سندری اور جانداد کا رشتہ ثابت ہو گیا تو اس کی برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ صاحب جان کے ساتھ مل کر ایک ایسا منصوبہ بناتا ہے جس میں سندری کو بدنام کر کے حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ وہ کہتا ہے،
तुमने लोगों को सलाखों के पीछे कैद होते देखा है, लेकिन लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो। इसका इशारा गुलाम की तरफ है जो सुंदरी की मोहब्बत में कैद हो चुका है। आशिक अली का अगला वार सुंदरी की पाक दामनी पर होगा। वो झूठे गवाह और जाली कागजात तैयार करवाता है ताकि जानदाद की नजर में सुंदरी की अहमियत खत्म हो जाए। सुंदरी जो इन तमाम साजिशों से बेखबर है, अपनी ही दुनिया में मग्न है। उसकी आंखों की वो मासूमियत ही गुलाम के लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। एक जज्बाती मंजर में जब गुलाम उसे खबरदार करने की कोशिश करता है तो सुंदरी की खामोशी उसे मजीद तड़पा देती है। गुलाम उसे कहता है कि इसे ये शहर, ये हवेली छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन सुंदरी का जवाब उसे लाजवाब कर देता है। वो कहती है कि जो कैदी अपनी जंजीरों से मोहब्बत कर ले, उसे आजादी की ख्वाहिश नहीं रहती। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब अस्पताल से एक पुरानी रिपोर्ट बरामद होती है। ये रिपोर्ट उस रात की है जब जानदाद की बेटी की पैदाइश हुई थी। इस दस्तावेज में दर्ज निशानात और सुंदरी के हाथ पर मौजूद पैदाइशी निशान का मिलना इस बात की तस्दीक कर देता है कि सुंदरी ही वो नस्ल है जिसे जानदाद ढूंढ रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जानदाद एक ऐसी लड़की को अपनी बेटी तस्लीम करेगा जिसने कोठे पर परवरिश पाई, या वो अपनी अना की खातिर इस सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर देगा। किस्त के इख्तिताम पर गुलाम और जानदाद का आमना सामना होता है। जानदाद उसे हुक्म देता है कि उस लड़की को ठिकाने लगा दिया जाए, क्योंकि वो अब उसकी इज्जत के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन गुलाम, जो अब बदल चुका है, पहली बार अपने आका की आंखों में आंखें डालकर इनकार कर देता है। वो कहता है कि सुंदरी को हाथ लगाने से पहले उसे उसकी लाश से गुजरना होगा। ये वो लम्हा है जहां वफादारी और मोहब्बत